السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واجد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی گزر رہی ہوں گی۔ اس وقت نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب سسٹم کے بہت اعلیٰ لاڈلے ہیں اور ان سے بہترین لاڈلے ان کے لیے کوئی اور نہیں ہے، لیکن دونوں اس وقت نااہل ہے اور دونوں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور دونوں جو ہے نا بڑی سیٹوں کے اوپر یعنی بڑی کرسیوں کے اوپر وہ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں اور دونوں وزارت عظمیٰ کا خواب بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن دونوں ابھی تک جو ہے نا تاحیات نااہل ہے اور قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ جو بندہ تاحیات نااہل ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ابھی تک برقرار ہے، لیکن ان کو دوبارہ سسٹم میں لانے کے لیے ان کو دوبارہ الیکشن کرا کے الیکشن لڑوانے کے لیے ان کے لیے توجہ کی جا رہی ہے اور بہت تیزی سے جو ہے نا پاکستان میں یہ کوشش کیا جا رہا ہے کہ ان کو دوبارہ سسٹم میں لایا جائے، وہ دوبارہ جو ہے نا اس جنرل الیکشن میں حصہ لے سکے۔ تین چار بہت اہم خبریں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پورے پاکستان میں ایک عجیب سی سچویشن بن چکی ہے اور ایک کام کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیے، صرف ہمارے جو دروازہ ہے وہاں تک پہنچے، درخواست اب جمع کرائیے، پھر اس کے بعد آپ کی درخواست کے اوپر سنائی ہوگی اور سنائی کے بعد جو ہے نا آپ کو ریلیف مل جائے گا اور آپ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ یہ نہ ہو کہ جو ہے نا آپ انجانے میں جو ہے نا آپ کو سزا مل جائے اور آپ جو ہے نا انجانے میں مارا جائے۔ یہ میں نہیں بتا رہا ہوں بلکہ یہ پاکستان کے اخبارات میں یہ بتا رہی ہے، پاکستان کے جو خبریں وہ بتا رہی ہے، جو دو لاڈلے ان دونوں کو الیکشن میں دوبارہ لانے کے لیے یا پاکستان کے پالیٹکس میں دوبارہ لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو آؤٹ کرنے کے لیے یعنی الیکشن سے یا پاکستان کی جو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تاحیات نااہلی کی اگر ہم بات کریں تو تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ میں تضاد کا معاملہ یہ چل پڑا ہے اور یہ معاملہ جو ہے نا سپریم کورٹ تک پہنچا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اپنے دوران حکومت میں کوشش کی تھی کہ نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کو ختم کیا جائے، تو انہوں نے الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی تھی، لیکن الیکشن ایکٹ آئین کے آرٹیکل کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا۔ سپرسیڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے اوپر جو ہے نا کام نہیں کر سکتا، آئین کے آرٹیکل اوپر ہوگا اور پھر اس کے نیچے بھی جتنے بھی ہم جو ہے نا وہ چینجز کریں گے، تبدیلی کریں گے، تو وہ اس کے نیچے جو ہے نا اسی کے مطابق وہ کام کرے گی، وہ اس کے مطابق جو تھوڑی بہت چینجز کر کے ہم جو ہے نا اس میں وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے نیچے وہ جو ہے نا اس پالیسی کو آگے پروسیڈ کرے گی اور وہ اس کے تابع ہوگی، اور اس سسٹم کو ہم انڈو نہیں کر سکتے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے پاکستان سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو بخوبی اس کا علم بھی ہے۔ وہ یہ پاکستان میں رہا ہے کہ کل اور پرسوں تمام اخبارات میں جتنے بھی اخبارات ہیں وہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو اشتہارات جو نا شائع کی گئی ہے، اور یہ اشتہارات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ ان اشتہارات کے اندر آخر کیا ہے۔ ان اشتہارات کے اندر خبر یہ ہے کہ تاحیات نااہلی سے سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں تضاد کے معاملے پر سپریم کورٹ کے رائے پر اخبارات میں اشتہارات جاری کیا گیا ہے۔ اشتہار میں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرٹیکل 62(1)(f) اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 232 کے تحت نااہلی کی مدت کا سوال اٹھایا گیا ہے، اور عدالتی فیصلے کے اثر آئندہ عام انتخابات میں امیدواروں پر ہو سکتا ہے۔ یہ چیز آپ لوگوں نے لازمی ذہن میں رکھنے کے عام انتخابات آئندہ انتخابات کے یہ ابھی جو 2024 میں آنے والے انتخابات ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے، تو سپریم کورٹ میں اپنا جامع تحریری جواب جمع کروا سکتا ہے، اور مذکورہ اپیلوں اور دیگر متعلقہ مقدمات کی سماعت 2 جنوری 2024 کو 7 رکنی بینچ کرے گا۔ یہ بنیادی طور پر ایک امیدوار کا کیس تھا اور یہ کیس کب تک 11 دسمبر کو میر بادشاہ خان کسانی کی نااہلی کا کیس تھا، اور ان کی نااہلی کی کیس کے سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیا ہے کہ نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ چیف جسٹس اور اطہرم من اللہ صاحب پر مشتمل بینچ نے تاحیات نااہلی کی مدت کی تعین کے معاملے کو لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ کیس کی اگلی سماعت 2 جنوری 2024 کو ہوگی۔ الیکشن کا شیڈول بھی آ چکا ہے اور فائنل لسٹ آنے سے پہلے اس معاملے کو ختم کیا جائے گا، کیونکہ ان دونوں کو ہم نے سسٹم کے اندر کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ جو ہے نا اس سے پہلے ختم کرنا چاہیے نواز شریف اور جہانگیر ترین صاحب کو سسٹم کے اندر لانے کے لیے۔
आगे मजीद इसके ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा गया था अगर कोई नहीं आया तो ये फैसला सिर्फ बादशाह खान केस तक जो है ना रहेगा, यानी ये सिर्फ उनका इनके ऊपर जो है ना अप्लाई होगा। यानी यहाँ पे भी इमरान खान नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को जो है ना ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप कोशिश करें जितना जल्दी आपसे मुमकिन हो आप जो है ना हमारे दस्तक तक पहुँच जाए और सिर्फ दस्तक दे दे, बाकी काम हम कर लेंगे। चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब ने कहा था कि अगर किसी की सज़ा ख़त्म हो जाती है तो तहायत नाअहली कैसी बरकरार रह सकती है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया था, यानी नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की सज़ा ख़त्म हो चुकी है तो अब वो तहायत नाअहल किस तरह रह सकते हैं। उन्होंने कहा था अगर किसी के ऊपर सज़ा लग जाती है 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 6 साल की, तो उनको फिर तहायत बरकरार रखना जो है ना वो नामुमकिन है और ये जो है ना अच्छी बात नहीं है कि वो तहायत नाअहल हो, क्योंकि वो जब सज़ा काट लेते फिर जो है ना उनकी तहायत नाअहली ख़त्म करनी चाहिए। चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब ने ये सवाल उठाया था। अगर कोई बंदा झूठा बयानी हल्फी पर कागजाती नामजदगी जमा कराए तो उनको तो नाअहल ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना गैर आइनी काम है तो उनको नाअहल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 62(1)(f) के तशरीफ पर पनामा केस में नवाज शरीफ साहब को लाइफ टाइम नाअहली हो गई थी और अब वो दोबारा वापस नहीं आ सकते और अब ये लाइफ टाइम जो है ना नाअहली इनकी रहेगी। और इसी तरह जो है ना जहांगीर तरीन साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब जो इंसाफ जो है ना वो इनकी जो दरवाजे पर पहुंच चुका है और वो उनको दस्तक दे रहा है कि आप आइए और हम आपको इंसाफ देंगे। दूसरी जानिब आम इंतखाबात के या नुमाइंदे के आज़ादाना तरीके से कागजाती नामजदगी जमा कराने सर्दियों की छुट्टियों से पहले चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब ने इसके ऊपर मुहर लगा दिया कि इसी के ऊपर कोई भी बंदा सवाल नहीं उठा सकता और इसी के साथ साथ जो है ना उन्होंने हाई कोर्ट्स को भी पाबंद कर दिया कि आप इसी के ऊपर सवालात नहीं उठाए। कल फिर जस्टिस मंजूर अली शाह साहब ने एक फैसला भी दिया है और इसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है ना बुनियादी हक है और इस इलेक्शन के अंदर बुनियादी हक ये है कि इलेक्शन के रास्ते में किसी किस्म का रुकावट ना हो बुनियादी, क्योंकि इसकी वजह से अगर रुकावट आ जाए तो बुनियादी हुकूक जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन बुनियादी हक तो इंसान का ये कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन लड़े। जब आपको साफ और शफाफ इलेक्शन लड़ने का मौका ही ना दिया जा रहा हो तो आप जो है ना हुकूक की बात आगे आप किस तरह कर सकते हैं। तो ये उन्होंने ये कहा कि गैर जानिबदारा हो, मुनसिफाना हो, आज़ादाना तरीके से, ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान में कहाँ पे हो रही है। आप सामने देख सकते हैं कि क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। दुनिया भर का मीडिया या अगर आप कोई बच्चा ये कह रहे हैं कि 2 दिन के दौरान जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है, क्या इस पर पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है उनको अजहुद नोटिस लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जो हालात पाकिस्तान के अंदर बन चुके हैं और बिलखुसूसन वर्चुअल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के साथ जो कुछ हो रहा है इसमें जो है ना इसके ऊपर जो है ना अजहुद नोटिस लेना चाहिए था। साफ और शफाफ इलेक्शन की अगर बात कर ले तो ये सब लोगों का बुनियादी हक है और इसके लिए उम्मीदवारान का कागजाती नामजदगी जमा कराना भी इनका बुनियादी हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अगर बात करें तो कुछ लोग जो है ना कहीं पे छुपे, कई लोग जो है ना जेलों के अंदर हैं, कुछ लोग जो है ना बाहर मुल्क जा चुके हैं, लेकिन वो जब कोशिश करते हैं वो जब यहाँ पे आते हैं कागजाती नामजदगी जमा कराने के लिए तो उनको दोबारा पकड़ा जाता है और उनको जेलों में डाला जाता है या उनसे वही पुराना बयान जो है ना उनसे रिकॉर्ड कराया जा सकता है। एक इसके अलावा एक बड़ी अहम खबर एक बलूचिस्तान के हवाले से है कि कल आपने देखा भी होगा कि बलूचिस्तान से काफ़ी लोग इस्लामाबाद की तरफ आए थे और बहुत ज़्यादा शहरी आए थे और ये जो शहरी थे ये निहत्थे लोग थे, गैर मुसल्लह लोग थे, इनके पास कोई किसी किस्म का असलहा नहीं था और वो अपने हुकूक के लिए आए थे। क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन जिस तरह आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि हर सूबे की जो सिचुएशन है वो दूसरे सूबे से मुख्तलिफ है। कहीं पे अभी भी जो पुराना सिस्टम है जो 1960s यानी 1960, 1940, 1930 के वक्त जो सिस्टम था वो कुछ सूबों में और बिलखुसूसन बलूचिस्तान में अभी भी वो सिस्टम जो है ना मौजूद है। सरदारों का जो निज़ाम है या खान और वडेरा ये जो निज़ाम है वो अब भी वहाँ पे मौजूद है। तो उनके ख़िलाफ़ वो अपने हुकूक लेने के लिए आए थे, लेकिन उनके ऊपर जितना तशद्दुद किया गया है तो आप यकीन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का तशद्दुद किया जा सकता है। इसमें कल हमने देखा था कि इसमें बच्चे भी शामिल थे, इनमें ख़वातीन भी थी और बुज़ुर्ग लोग भी थे
और लोग पूरा खानदानों के साथ आए थे, यानी पूरी फैमिलीज के लोग आए थे। इनके ऊपर वाटर गैलन जो ना फेंका गया है और ये सर्दियों की रात है, इसमें छोटे बच्चे भी थे उनके पास। मुमकिन है कि 20-25 दिन का भी बच्चा इसमें मौजूद हो, 40 दिन का बच्चा भी हो, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह हुकूक लेने के लिए जो है ना सब लोग घरों से निकल के आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ इसी असना में या इसी दिन के अंदर जो हुआ है, एक अजीब चीज़ ये हुई है कि वो ग्रुप्स जो पहले पाकिस्तान उसको दहशतगर्द करार देते थे, पाकिस्तान यानी पाक आर्मी के जवान उन्होंने शहीद किए थे, पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उनको लाया गया था और बेहतरीन से जो है ना प्रेस क्लब के सामने बिठाया गया था और उनको जो है ना कौमी दायरे में शामिल किया गया था और इनको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी गई थी। लेकिन वो लोग जो आए थे और वो प्रेस क्लब के सामने बैठना चाहते थे, वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना चाहते थे, लेकिन उनको वहाँ पे बैठने नहीं दिया गया था, क्योंकि अगर वो बैठ जाते तो क्या हो जाता, उनके साथ गुफ्तगू की जा सकती, उनके साथ बातचीत की जा सकती थी और उनको आसान तरीके से वापस भेजा जा सकता था। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में अभी मौजूदा वक्त पे देखें तो पाकिस्तान का जो निगरान वज़ीर आज़म साहब है उनका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है। अगर हम सेनेट के चेयरमैन की बात कर ले तो उनका भी ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। इसी के साथ साथ अगर हम पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अगर बात कर ले, एपिक कोर्ट्स जो है उसका भी जो है ना चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है। निगरान वज़ीर दाखिला साहब जो थे उनका भी ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था। अब वो जो है ना अब जनरल इलेक्शन के लिए उन्होंने जो है ना रिटायरमेंट ली है अपनी सीट से, तो ये उनसे अच्छे तरीके से आसान तरीके से उनके साथ बातचीत की जा सकती थी, उनको वापस भेजा जा सकता था। अगर 1-2 दिन वो वहाँ पे बैठ भी जाते तो वो तो गैर मुसल्लह लोग थे, वो कुछ नुकसान नहीं पहुँचाना चाह रहे थे, वो सिर्फ अपना पैगाम पहुँचाना चाह रहे थे, तो उनको वहाँ पे बैठने दिया जा सकता था। लेकिन ये मुल्क के हालात है, इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं। फिर जो है ना बार कौंसल की तरफ से जो है ना एक कदम रखा गया है। एतजाज़ एहसन साहब ने कहा है कि तमाम बार कौंसल का मजमून एक ही है, इसका स्क्रिप्ट राइटर जो है ना वो भी एक ही है और वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब है जो कि जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। तो इससे लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसी के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी इलेक्शन को डिले करना नहीं चाहेगी और न वो कभी भी चाहेंगे कि इलेक्शन जो है ना ताख़ीर से हो। किसी किस्म का ना इनका वास्ता न बिलवास्ता तौर पर इसमें किसी किस्म का मुदाखिलत होगा कि इलेक्शन किसी न किसी तरीके से जो है ना डिले किया जाए। बार कौंसिल और बार एसोसिएशन की एलानिया जो मंदरजात है उनमें जो है ना ये सारी चीज़ें, फिर वो जो चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो है ना बात की गई है। इमरान खान साहब ने पहले ही ये कहा था कि चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को तब्दील करना चाहिए और इनके खिलाफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा उन्होंने गुफ्तगू की थी कि ये गैर जानिबदार नहीं है, यानी एक ये जानिबदार शख्स है। साफ और शफाफ इलेक्शन जो है ना इनके होते ही जो है ना नहीं हो सकते। लेकिन अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर अब इनको तब्दील किया जाए तो ये इलेक्शन डिले हो सकता है। ये भी एक टेक्टिक है जो वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि इसी की वजह से डिले हो सकता है। लेकिन अगर इनको डिले करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुल्क के अंदर सिस्टम चल रहा है और ये मुल्क जो है ना ये ना आज बना है, ये कल बना है, ना परसों बना है, बल्कि ये मुल्क जो है ना 75 साल पहले बना है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो जो है ना एक सुप्रीम कोर्ट का एक जज साहब जो है वो नॉमिनेट करेंगे, 2-3 घंटे के अंदर अंदर जो है ना दूसरा चीफ इलेक्शन कमीशन आ जाएंगे और जो है ना वो आगे जो है ना इलेक्शन कराएंगे। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर करना चाहे तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।